गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती ITCX 2025 गिरीश जी कुलकर्णी साहेब thank you so much for giving us an opportunity. I advocate Rajendra Babu Rao Maab since last 7.5 years trustee of Chinchwad Devasthan Trust, which is at Chinchwad, Pune in the state of Maharashtra. It is scheme of the Chinchwad Devasthan Trust is sanctioned by High Court of Bombay in 1890, and after the Charity Trust Act 1950, it was registered in charity office in 1952, and since this Chinchwad Devasthan Trust is working. Chinchwad Devasthan Trust, under this trust, there are 3 Ashtavinayakas out of 8 Ashtavinayakas, namely Morgaon, which is the first Ashtavinayak. Usually, devotee starts Ashtavinayak Yatra from Morgaon. It is around 68 kilometers from Pune. Second Ashtavinayak is Sri Siddhivinayak, which is around 106 kilometers from Pune. It is at Siddhatek, which comes in Ahmednagar, Ahilya Nagar district in Maharashtra state. Third Ashtavinayak is Chintamani, Theur, which comes 28 kilometers from the Pune. I want to tell you that Maharani Jizamata Jizao, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose birthday anniversary is celebrating all over world, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Maharani Yashubai used to take blessings from Sri Moria Goswami and his son Chintamani Maharaj and Narayan Maharaj. Coin printing authority has given to Chinchwad Devasthan Trust by rulers of that time. It is exclusive universal example in Sri Ganesh Sampradaya that Sri Mayureshwar, first of Ashtavinayaka, was impressed with the devotion of Sri Mahasadhu Moria Goswami Maharaj and actually came to the residence of Sri Moria Goswami and is still there. So let's follow apex level of devotion and bhakti towards Ganeshji. Ganeshji is Sukharta, Dukharta, Vignaharta, Chintahar, Mayureshwar, first Ashtavinayak, blessed Mahasadhu Sri Moria Goswami to chant universally on his name as we say Mangal Murti Moria, Ganpati Bappa Moria. This is the blessings of Lord Sri Ganesh Mayureshwar was given to Sri Moria Goswami. So, famous Sri Ganesh Arti, Sukharta Dukharta, was organized by Sri Ramdas Swami at Mayureshan Temple, Morgaon. Idol of deity was placed at today's place by Pandava in Mahabharat era. Siddhatek is the second Ashtavinayak temple which comes under Chinchwad Devasthan Trust. The great Vishesh of Ahilyadevi Holkar, who constructed this temple and established Shankara Panchayatan at Siddhatek. It is only one of the Ashtavinayak
having right side trunk. Also the deity originated from the hill. So devotee has to take round pradakshina of hill, not the temple Garbhagriha as other Ashtavinayak. So this is the one of the main of Ashtavinayak Sri Siddhatek. Chhatrapati Shivaji Maharaj, named after Shivai Devi, situated at Shveneri, part of second most important temple of Shivai Devi, is adjoining to the Siddhatek temple at Siddhatek in the district of Ailanagar. The third temple of Ashtavinayak, Chintamani, it is situated at Theur. Devotee take darshan for Chintamani for ending worries in the modern world. Also great Peshwa took last breath at the temple of Sri Chintamani of Theur. Thank you, Ganpati Bappa Moria. We'd have the next temple to introduce. Now, fourth temple of Ashtavinayaka, Ranjangaon Ganpati. जय मौर्या। इस आईटीसी 2025 के महाकुंभ में आप सबका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और इसका जो गिरीश सर ने ऑर्गेनाइजेशन किया उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं संदीप दौंडकर, अष्टविनायक में से चौथा गणपति, रांजनगांव गणपति ट्रस्टी। आज हमारे महागणपति में से एक माना जाता है। ये पूना सिटी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये मंदिर है जो कि पूना नगर हाईवे से टच है और आने वाले सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों का डिस्टेंस लगभग बराबर है। यह मंदिर पुरातन संस्कृति में माना जाता है। यहाँ पे खुद पिता ने मतलब भगवान शंकर ने अपने बेटे के लिए उपासना करके वहाँ प्रकट करवाया हुआ है, इसलिए इसका महत्व अपनी जगह पे बहुत सारा है। और यह ट्रस्ट 1941 की हमारी सबसे पुरानी ट्रस्ट है। यहाँ पे हम अभी महिला अध्यक्ष के रूप में पहली बार महिला अध्यक्ष हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हम आने वाले समय में भी भाविकों को भी यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। अगली नेक्स्ट पांचवा गणपति ओझर गणेश जी कौटे। जय गणेश। जिसके दर्शन से ही अपने विघ्न, अपने हुई आपदा नष्ट होती है, वो विघ्नेश्वर देवस्थान से मैं ट्रस्टी तुषार कौड़े बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमें यहाँ न्योता दिया। हमारे यहाँ कई सारी सुविधाएं हम देते हैं। भक्त निवास है, उसमें से 150 रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, एसी रूम्स अवेलेबल है। उसके बाद भोजनालय है, भोजनालय में जो अन्न छत्र है उसमें जो खाना बचता है उसका हम बायोगैस बनाते हैं। तीसरी है जो यूपीएससी एमपीएससी जो क्लासेस लिए जाते हैं हमारे यहाँ फ्री फैसिलिटीज़ हम स्कूल को देते हैं। स्कूल का पूरा कारोबार हमारा देवस्थान ही देखता है। चौथा है जो हमारे यहाँ फूल चढ़ाते हैं भगवान को, उसका हम धूप अगरबत्ती बनाते हैं ताकि वेस्टेज बिल्कुल चला नहीं जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी देवी और सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं जितेंद्र बिड़वई, अष्टविनायक में से एक तीर्थ क्षेत्र श्री क्षेत्र लेनेद्री गणपति देवस्थान ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। हमारा जो देवस्थान है वो महाराष्ट्र में पुणे ज़िले में है। पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये लेनेद्री गणपति देवस्थान आता है। उधर आप जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जिस किले पे हुआ, जिस फोर्ट पे हुआ, वो किले शिवनेरी,
शिवनेरी फोर्ट, वहाँ से हम आए हुए हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। मैं अष्टविनायक गणपति के बारे में बाकी सब लोग ने बताया है, मैं भी अपने लेनेद्री गणपति देवस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। पूजा का पहला जो मान दिया जाता है वो गणेश जी को दिया जाता है, इसलिए अष्टविनायक कुंभ में बहुत सारा महत्व ये अष्टविनायक को है। बहुत सारे भक्तगण हर साल अष्टविनायक यात्रा, अष्टविनायक परिक्रमा करते हैं। उनको गिरिजात्मक गणपति बप्पा का स्थान पर्वत की गुफा में है। पर्वत की गुफा यानी लेनी, और लेनी में गणेश जी का वास है, इसलिए लेनाद्री कहते हैं। उधर जो गुफा है वो 50 फीट बाय 60 फुट की गुफा है। उसको बीच में कोई भी पिलर नहीं है। माता पार्वती ने 12 साल उधर तपश्चर्या की थी, तो स्वयं गणेश जी उधर प्रकट हुए। और ये मंदिर पर्वत पे होने के कारण एएसआई के अंडर है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर है। इसलिए लेनेद्री गणपति देवस्थान ट्रस्ट की ओर बहुत सारी सुविधाएं हम भक्तगणों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं करने में हमको अड़चन आ जाती है, हमको विपत्ति आ जाती है। जैसे कि हम उधर रोपवे करना चाहते हैं, वेटिंग शेड करना चाहते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं हम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के कारण वो करने को जमता नहीं। तो मेरी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से गिरीश जी आपको विनती है, लाड साहब को विनती है कि आप इस बारे में थोड़ा सा हल निकालें। आज हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी यहाँ पे बैठे हुए देवी और सज्जनों को प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जरूर एक बार हमारे अष्टविनायक दर्शन करने जरूर आ जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, जय गणेश। मैं हूँ सिद्धार्थ जोशी। अष्टविनायक के जो 7वें नंबर गणपति जो है, जो महड़ में है, वरद विनायक, मैं वहाँ का विश्वस्त हूँ। आज इस मंदिरों के महाकुंभ में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, जहाँ आप जैसे महान लोगों से मिलने का मौका मिला। अभी वरद विनायक जो गणपति मंदिर है वो ठीक बम्बई और पुणे के एग्जैक्टली बीच में है। बम्बई से भी 70 किलोमीटर है, पूना से भी 70 किलोमीटर है। तो हमारे यहाँ जो अधिकतर भाविक आते हैं वो बम्बई और पूना से आते हैं, और बल्कि पूरे देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। लेकिन जो हमारा टेम्पल का लोकेशन है वो एग्जैक्टली पुणे और मुंबई के बीच में है। इसके लिए कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। बहुत भीड़ आती है, और आप सभी को भी आमंत्रण है कि आप हमारे मंदिर आए, पूरे अष्टविनायक का दर्शन करें। श्री वरद विनायक बप्पा की ये ख्याति है कि जब गृस्मद ऋषि ने गणेश जी की तपस्या की और गणेश जी उन पर प्रसन्न हुए, तो गणेश जी ने उनसे वर मांगा, वर मांगने के लिए कहा। तो गृस्मद ऋषि ने खुद के लिए न कुछ मांगते हुए उन्होंने यही वर मांगा कि जो आपकी तपस्या करे, आपकी पूजा अर्चना करे, उन सब की इच्छाएं पूर्ण करे। इसीलिए हमारे महड़ के गणपति बप्पा का नाम है इच्छा पूर्ति करने वाले वरद विनायक। तो वरद का नाम भी इच्छा पूर्ति करनारा उसका अर्थ होता है। इसलिए आप जरूर आइए। और हमारे मंदिर का यूएसपी है कि आप गणपति बप्पा के चरणों तक, गर्भगृह के अंदर तक जा सकते हैं और गणपति बप्पा का दर्शन ले सकते हैं। तो ये इस बात से हमारा एक मंदिर का ये यूएसपी बनता है कि आप सभी भाविक डायरेक्टली गणपति बप्पा के चरणों तक जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी अष्टविनायक की ख्याति आपके मंदिरों में प्रसिद्ध करें, सभी अष्टविनायक के दर्शन के लिए आए। और मैं गिरीश जी का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को ये मौका दिया नेटवर्किंग करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। धन्यवाद। गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं त्रिनेत्रं बृहदुदरमराशं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसूतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री देव बल्लाळेश्वरांना वंदन करतो।
By the grace of God and continuous extravagant efforts of Temple Connect management team, we are here to represent globally. I represent Ashtavinayak Kshetra Pali. As Siddharth Joshi ji tells, Ashtavinayak Pali Ballaleshwar Mandir also also gives Ichha Purti. This mandir is also famous for Ichha Purti. At Pali Devasthan Trust, we are providing world-class infrastructure, and all the infrastructures and provisions set as a benchmark, like Tirupati and Shirdi Trust, we are providing all the services at Pali. We always believe having prospects of becoming a big trust and big trust, the difference is only thoughts. And thoughts are going to make the impacts. मंदिर कहाँ है, मंदिर में कैसे आना है, उसके लिए हमारा एक वेबसाइट है sriballaleshwarpali.org. वहाँ पे आपको वो सब जानकारी उपलब्ध होगी. लेकिन जैसे सिद्धार्थ जोशी सर ने बताया, जो यूएसपी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो मैं इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहता हूँ. हम दो दिन से सुनते आ रहे हैं, इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री. एट प्रेजेंट इंडिया का करंट एज है 28 ईयर्स. जो अपना एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है, और काफ़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया में है. इंडिया के लोग हैं आज ये टीनेजर्स है, उनके हाथ में आज मोबाइल है. अगर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का शिक्षण लोगों को देना चाहते हैं, तो उनकी मानसिकता होनी चाहिए वो धर्म का शिक्षण ले. उस दिशा में हमारा ऐसा एक प्रयास है कि मोबाइल उनके हाथ में है. आई नो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. मोबाइल हैव वेरी गुड साइड्स पर वेरी बैड इफेक्ट्स आल्सो. टू अवॉइड एक्सेस एंड यूजलेस मोबाइल यूज, वी आर ट्राइंग, जो हमारा तहसील एरिया है वहाँ पे हमने 1500 स्कूल के बच्चों को, 1500 स्कूल के बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव किया है. उस इनिशिएटिव में हम उन बच्चों को एक पासवर्ड नाम का मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हैं. वो पासवर्ड का कंटेंट ऐसा है, वो कंटेंट पढ़ के बच्चों की वाचन में रुचि बढ़ जाए. बच्चों की वाचन में रुचि बढ़ेगी तो मोबाइल संस्कृति का ह्रास होगा. जो बैड इफेक्ट्स है मोबाइल के, वो दूर हो जाएंगे. उनकी वाचन संस्कृति, वाचन का स्किल बढ़ेगा. और उन पे हम क्विज आयोजित करते हैं और उनको बख्शिश देते हैं. इस तरह से यह हमारा एक अलग प्रोग्राम है. जो दूसरा हमारा अलग प्रोग्राम है, कोविड-19 हुआ था तब सब लोग ऑक्सीजन, हाउ प्रेशियस ऑक्सीजन, यह हम सबको पता चल गया था. मे बी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, we can extract oxygen from air, but our responsibility to introduce oxygen in the air. In that regards, we have developed oxygen zones near our तहसील. हमने वर्ड पिंपल जो पेड़ है जो दिन और रात में ऑक्सीजन इमिट करते हैं, उनके 5-6 जोन्स बनाए हैं. दैट इज आवर यूनिक थॉट प्रोसेस.